خدا کے نام کو جلال ہاللویا، خدا ان کی تعریف ہو، اس کے نام کو جلال میں رہے۔ میں شکر گزار ہوں خاص طور پر بھائی صابر کا اور دیگر تمام عزیزوں کا، پریزائڈر بھائی کا، جنہوں نے یہاں پر خدا کے کلام کو مدعو کیا ہے، بلایا ہے، دعوت دی ہے۔ اور جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ہاللویا۔ اور خداوند کا کلام ہے جس کو ہم بلاتے ہیں، اور کلام میں آپ کو بتاؤں کوئی بے جان چیز نہیں ہے، کلام ایک زندہ چیز ہے، اور یہ ایسی زندہ چیز ہے جب کسی کے پاس جاتی ہے، کسی کی زندگی میں جاتی ہے تو اسے زندہ کر دیتی ہے۔ تمام اس لیے ہم نے اس کلام کی ویلیو کو سمجھنا ہے، اسی سبب سے ہم نے آج کلام کو یہاں پر بلایا ہے، مدعو کیا ہے، اسے انوائٹ کیا ہے۔ اور ہم جب خداوند کو انوائٹ کرتے ہیں، کلام خدا ہے اور کلام زندگی ہے، اس کو جب انوائٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں کچھ ہمیں عزت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، ہمارے معاملات جو ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے وہ ہمارے متعلق ہمیں بتاتا ہے، کیونکہ وہ ایک اچھا مشیر ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئے ہم دیر کی بغیر خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں، اور اس سے بیشتر کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں، میں آج کی صبح میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور خداوند کے حضور میں آپ کے لیے دعا دوں کہ خداوند آپ کو تمام طرح کی برکتیں دے۔ شکر گزار ہوں آپ کے یہاں پر آنے کے لیے بھی، کہ آپ نے اپنا دور سے اتنے سخت موسم کے اندر بھی آپ خدا کے حضور میں آئے اور اپنا قیمتی وقت خداوند کی نظر کیا۔ ہاللویا، اس بات کے لیے عزیزو خداوند کو برکت دے۔ آئے ہم کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں، ان نوشتوں کی طرف جو خداوند نے اس آخری زمانہ میں اپنی دلہن کو دیے، اور یہ کئی زمانوں کا سفر کر کے میرے عزیزو آج ہم تک پہنچے۔ اس حوالے سے ہم انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہ کلام ختم نہیں ہوا ابھی تک زمین سے، کیونکہ ہم زمین پر ہیں، کیونکہ اس کی دلہن زمین پر ہے۔ لیکن جب دلہن اٹھا لی جائے گی، نمک اٹھا لیا جائے گا، تو مطلب کلام اٹھا لیا جائے گا۔ ہاللویا۔ اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم شاندار زمانے کے اندر ہیں، وہ کہ یہ گندا زمانہ ہے، لیکن ایک حوالے سے یہ بڑا شاندار زمانہ ہے، کیونکہ ہمارا اب ریپچر ہونے والا ہے۔ دنیا جو مرضی کرے، ہمارا ریپچر ہونے والا ہے۔ ہاللویا، گاڈ بلیس یو۔ آئے ہم خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ بک آف ریویلیشن، کتاب مکاشفہ میں چلیں گے، چیپٹر 1 نکالیں گے۔ The book of Revelation, chapter 1. Hallelujah. ستائش یسوع کے نام۔ Hallelujah. خدا ان کا نام مبارک، تعریف۔ جی، جس نے نکال لیا وہ پڑھے گا۔ 8ویں آیت سے وہ اسے 10ویں آیت تک پڑھے گا۔ جی، بلند آواز۔ خداوند خدا جو ہے، خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے۔ جی، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں۔ میں یوحنا جو تمہارا بھائی ہوں اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا کیا ہوں؟ شریک ہوں۔ جی، خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے۔ جی، پڑھتے جائیے۔ کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا، کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا۔ چھٹی آیت پر دھیان دیجئے، یہ ہماری بنیادی بات ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا۔ خداوند کے دن کیا آ گیا؟ میں روح میں بڑی آگے۔ اور اپنے پیچھے نسنگے کی سی یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر ساتوں کلیسیوں کے پاس بھیج دے۔ آمین، آمین، آمین۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ایک اور حوالہ نکالیں گے، لوکا کی انجیل میں چلیں گے۔ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، نکالیے گا اس کا 17واں باب، لوکا 17 باب۔
निकाल लिया? तीसवीं आयत, एक मिनट, तीसवीं नहीं, मैं आपको बताता हूं कहां से पढ़ना। 22वीं से 30वीं तक पढ़िए जी। मैं पढ़ता हूं आपके लिए, मैं आसानी के लिए आपके लिए पढ़ दूं या बेटियों में से कोई पढ़ दे आज बुलंद आवाज से। जी पढ़िए। उसने शागिर्दों से कहा, तो आए वो दिन आएंगे कि तुम इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरज़ू होगी और ना देखोगे। वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी और ना देखोगे, और देखने को नहीं होगा, मिलेगा नहीं इब्ने आदम का दिन। जी और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहाँ है, हाँ जी, यहाँ देखो यहाँ है, लोग तुमसे कहेंगे देखो इब्ने आदम यहाँ है या वहाँ है। जी मगर तुम चले ना जाना, हाँ जी, ना उनके पीछे हो लेना, हाँ जी, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, क्योंकि जैसे बिजली आसमान के एक तरफ से कूद कर दूसरे तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। पढ़ते जाइए। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए हाँ जी, और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें, हाँ जी, और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, हाँ जी, इसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। जी पढ़ते ये जाएं। लोग खाते पीते थे, हाँ जी। और उनमें ब्याह शादी होती थी। जी उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। जी और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। हाँ जी, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरस कर सबको हलाक किया। हाँ जी पढ़ते जाएं। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आमीन। खुदावन के कलाम का पढ़ा जाना और इसका सुना जाना मेरे अजीजो हम सबों के लिए बाइस बरकत, बाइस रहनुमाई और बाइस इस्लाह हो। और अगर हमें किसी भी तरह की कमी है तो खुदावन का कलाम इल्जाम भी लगाता है कि ये बात बेटा तुझ में गलत है, तू ठीक नहीं, अपने आप को ठीक कर ले। हालेलुया। बेटी तो अपने आप को ठीक कर ले। तो ये कलाम हमारे लिए बरकत और नसीहत और हमारे लिए जो है वो छुटकारा लेकर आए, मखनसी लेकर आए। हालेलुया। और अगर किसी पर किसी भी तरह की मुश्किल है तो इस कलाम के बाद आपकी जिंदगी से अलग हो जाए। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ। प्रेज गॉड। हालेलुया। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और फिर मैं कहता हूँ इसका मतलब क्या है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया का क्या मतलब है? प्रेज द गॉड या प्रेज द लॉर्ड। और उर्दू में क्या मतलब है? खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की हमद, उसकी तारीफ हो। हालेलुया, तारीफ हो। इसलिए हालेलुया जरूर कहना चाहिए, कदूस भी जरूर कहना चाहिए। प्रेज द होली नेम ऑफ जीसस, ये भी कहना चाहिए कि खुदावन यीशु का नाम मुबारक, ये भी कहना चाहिए। कहते रहो। कहने में कौन से पैसे लगते हैं? कहने में कौन से पैसे लगते हैं? आज का हमारा मौजू है, सबसे पहले हम इसको कोट कर लेते हैं। खुदावन का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड। खुदावन का दिन। खुदावंद कहते हैं लॉर्ड को और खुदा कहते हैं गॉड। मेरी बात समझ रहे हैं? खुदावंद कहते हैं लॉर्ड को और खुदा कहते हैं गॉड को। इसलिए खुदावंद का दिन। हालेलुया। अब हमने यहाँ पर दो हवाले कोट किए, हवाले काफी ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपको दो हवालों की रोशनी थोड़ी सी आपके लिए खुदावंद के रूप से मांगूंगा। आमीन। क्योंकि मुकाशफा की रोशनी हमेशा से फ्रेश आई है, वो पहले से डिसाइड रोशनी नहीं होती, वो फ्रेश आती है, खुदा से फ्रेश आती है नबी के पास और नबी के जरिए से काहिनों और फिर कलीसियों के पास। हालेलुया। और हम चूंकि इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम इस आखिरी जमाने की ब्राइड कलीसिया है, दुल्हन कलीसिया है, हमें एक लेबल दिया गया कि हम ना सिर्फ पास हैं बल्कि स्टैंडर्ड लेवल के पास। हम ना सिर्फ कामयाब हैं बल्कि हाई लेवल पे जाके कामयाब हैं। हमने सिर्फ लोगों को बीट कह दिया, क्रॉस नहीं किया, बल्कि हमने अच्छी खासी लीड दी है उनको, है ना? मेरी बात समझ रहे? लीड समझते हैं ना? हमने ये मैच जो है हमने 2 रन से ऊपर नहीं जीता, हमने 100 या 50 की लीड मारी है इनको। हमने 50 रन इनसे ऊपर बनाए। ये होती है।
तो आज कलीसियाएं भी दूसरे लफ्जों में 50-50 खेल रही हैं दुनिया के अंदर, अपनी तालीमात के जरिए से, अपने पड़ाव यानी अपने कब्जों के जरिए से, जहां जहां उन्होंने पड़ाव डाले हैं, और पैसे के जोर पर, आमीन, वायरल कॉलेजेस के जोर पर, कपड़ों के जोर पर, मैनेजमेंट के जोर पर, एटमॉस्फेयर जो उन्होंने बनाया होता है ना, जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर्स कहते हैं जो आपके अंदर की चीजें हैं, राइशो तज़ीम की, फर्नीचर वगैरह, साउंड वगैरह, क्वायर ये लेवल, पढ़ाई ये लेवल, रिजल्ट ये लेवल, होता है कि नहीं? और लोगों की आंखें चकाचौंध रह जाती है, यार ये देखो, वाह वाह वाह, और बड़ी तमसील देती। तो क्या है ये, क्या है? कलीसियाएं भी आज एक हवाले से अपना अपना मैच खेल रही हैं, और सबसे बड़ा उनका जो उनका मुखालिफ है, उनके अपोज एक जो कलीसिया है, वो कौन सी है? द एंड टाइम मैसेज चर्च। ये उनके अपोज, ये उनके मुखालिफ, इसको वो अपना मुखालिफ मान रहे। हालेलुया। हालांकि ये रहम से भरा हुआ है, हालांकि ये कहता है बेटा आपको बताया इसलिए जा रहा है कि आप निकलो वहां से, खुदा के लोग उस बाबुल में से निकल आओ। आमीन। कहीं उन पर की आने वाली मुसीबतें तुम पर ना आ जाए। लेकिन वो क्या करते हैं? वो कहते हैं भाईजान है दवाई असा नहीं पीनी, ए चम्मच ਤੁਹਾਡੇ हथ से ਅਸੀਂ उगलांगे वापस। बात समझ रहे हैं? और मैं एक आपको बात बताता हूँ, खास बात। आज का हमारा मौजू बड़ा अच्छा है, खुदावंद का दिन, द डे ऑफ लॉर्ड। खुदावंद का दिन, मालिक भी खुदावंद को कहते हैं, खुदावंद को मालिक भी कहते हैं। पुराने अहदनामे के अंदर कुछ खवातीन ने, जैसे सारा और कुछ और भी खवातीन ने, अपने शोहरों को खुदावंद कहा। इस हवाले से मजाजी तौर पर, हकीकी तौर पर नहीं बल्कि तमसीली या मजाजी तौर पर, ख्याली तौर पर शोहर जो है वो खुदावंद की जगह मालिक यानी खुदावंद यानी लॉर्ड यानी मास्टर की जगह लेता है। हालेलुया। लेकिन जो सही खातून है, जो कलाम से मोहब्बत रखती हैं और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात देंदा और अपना लॉर्ड मानती हैं, वो फिर उसके दिए हुए दूल्हे को भी, उसके दिए हुए शोहर को भी अपना लॉर्ड मानती है, और इसमें दो राय नहीं है। मैं फिर बताता हूँ, ये एक तस्वीर है जमीन पर, शोहर आपके सर का ताज, जैसे मसीह अपनी दुल्हन कलीसिया के सर का ताज। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डे ऑफ लॉर्ड, बहुत से लोगों का ख्याल, दुनिया की नजरियाती कौंसलों का ये ख्याल है, द डे ऑफ लॉर्ड जो है, खुदावंद का दिन जो है, वो इतवार का दिन है। वो कहते हैं खुदावंद का दिन इतवार का दिन है, और बहुत सा दफा वो ये भी कहते हैं कि ये जिस दिन पितमस के जजीरा के ऊपर, पितमस का मतलब क्या है? उर्दू का लफ्ज है पितमस, आमीन, इसका मतलब है कड़वाहट, दुख की जगह, आमीन, परेशानी पीक की यहाँ पर थी, और यहाँ पर कोई जिंदगी का शायबा नहीं था। लेकिन जहां पर जिंदगी का शायबा नहीं होता, जहां पर रोटी नहीं होती, वहां पर मेरा खुदावंद कहता है, खुदावंद यीशु मसीह, जिसके बारे में आज हम सीख रहे हैं, द डे ऑफ लॉर्ड, हमारे खुदावंद का दिन, वो कहता है, शैतान उसे कहता है अगर तू कहे तो ये पत्थर रोटी बन सकते, क्योंकि उसे पता था कि ये जो भी कहेगा वो वजूद में आना शुरू हो जाएगा। आमीन, उसे पता था। लेकिन खुदावंद कहता है हाँ मुझे पता है मैं क्यों करूं। आमीन, मेरी बात समझ रहे? खुदावंद को कहते हैं चुप, इस भीड़ को क्या चुप हो जाए। उसने कहा अगर ये चुप हो गई तो ये पत्थर बोलेंगे, अगर यीशु ने कहा था तो वो बोल सकते। मेरा ईमान है आपका भी होना चाहिए। यीशु जो कहता है वो होकर रहा है। वो कोई कॉमन या साधारण या नॉर्मल खुदा नहीं है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर नेचुरल गॉड है। वो मफूकुल फितरत लॉर्ड है, खुदामद है हमारा। इसीलिए वो सारे कलाम में लिखे मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात, वो कहते हैं वैसे तो जमीन और आसमान में बहुत से खुदा और बहुत से खुदावंद कहलाते हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक ही खुदावंद है जो सबके ऊपर है, सबके दरमियान और सबके अंदर है, और वो कौन है? गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, तारीफ हो खुदावंद का नाम जलाल पाए। बड़ी प्यारी बात, हमारे ईमान को ताजा करो कि हमारे लिए तो एक ही है, एक ही है भाई, तस्लीस नहीं है हमारी। ट्रिनिटी को काउंट करके अदादुशुमार निकाल के लगाएंगे तो वो बात बनेगी। आमीन, हालेलुया। तो हमारे लिए कि उस खुदावंद ने अपने वक्त के अंदर, खुदावंद का दिन लोग समझते हैं, मैं कहता हूं जो लोग समझते हैं वो भी आपको बताऊं। लोग कहते हैं आज वरे दिना दा दिन है ना, वरे दिना दा कोई अज करके कहते हैं ना, वरे दिना दा दिन आज भी कहते हैं। और फिर कुछ कहते हैं कि आज सब्बत का दिन है, और ये सब्बत के दिन को कहते हैं खुदा का दिन है। और कहते कहां से है? पुराने, हाँ, सब्बत का दिन खुदा का दिन है, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन क्या वो सबत का दिन इतवार का दिन है? क्या वो सबत का दिन इतवार का दिन है? मुझे बताइए काउंटी पूरी कहां पर जाकर होती है? कहां पर जाकर होती है? आपकी अदादुशमा जब आप गिनते हैं दिनों को तो कहां में पूरा होता जाता है? सात का मतलब क्या? हफ्ते का मतलब क्या? हफ्त का मतलब ही सात है। साता दिनों के शुमार में साता सात, तो सात हो रहे हैं हफ्ता। और हफ्ते वाले दिन को, जो कि दुनिया में हफ्ते का दिन नाम दिया गया, जब खुदा दिनों जमीन को बना रहा था और कायनात को बना रहा था तो 6 दिनों में बनाया, और 7वें दिन को उसने क्या कहा? 7वें दिन को उसने क्या कहा? सबत कहा। सबत का मतलब क्या है? इब्रानी जुबान में से शबात कहते हैं। आमीन। और जो हिब्रू के फॉलोअर्स है, पाक कलाम में लिखा है जो शरीयत के मुताबिक चलता है उसका इंसाफ भी शरीयत के मुताबिक, अदालत भी उसी के मुताबिक की जाए। चले शरीयत को, चल ले, कोई मसला। मैं तो शरीयत के खिलाफ नहीं, मैं कहता हूं अगर कोई शरीयत के मुताबिक चलना चाहता है चल के देख ले, ट्राई कर ले। वैसे पिछलों ने भी की थी लेकिन हुआ नहीं कुछ उनका, क्योंकि खुदा का प्लान ही नहीं था ना। खुदा ने कोई प्लान बी रखा ही नहीं। खुदा का शुरू ही से प्लान ए था, और वो प्लान ए जो था आया बाद, प्लान बी पहले भेजा। तुम समझ रहे हो? गल समझो कि नहीं? प्लान बी क्या था? शरीयत। प्लान बी क्या था? अदन लगाओ, उसमें मैं भी हूंगा, हयात का दरख्त, और साथ में एक और भी लगा दूंगा, खुद ही लगा दूंगा। आज दुनिया च कोई ऐसा प्यो है, ऐसी माँ है कि कभी पुत्र ड्रामा कह दिया, ये गेमें नहीं खेलनी और घर चिले आके हैं गेमा रख दी, जो रखे भी घर ही। मैंने आम सी मिसाल दे दी है। या कोई पुत्र के माँ बाप के बेटा सिगरेट नहीं पीना, ते घर च डबियां ला पूरा है पंडल लाया हो, तो बोलेगा मामा ये क्यों? बोलेगी वैसे ही बेटा इसमें से नहीं पीना। बोलेगा मामा फिर रखा क्यों है? गल समझ आंटी? इसका मतलब है कोई प्लान सी, ਇਹਦਾ मतलब सी हाँ डिगो, ਇਹਦਾ मतलब सी डिगोगे थे मैं पता चलेगा कि मैं निजात देनी है तुम। तो प्लान बी में सबसे पहले डिसेप्शन है, गुमराही है, आमीन, गुनाह है। और फिर गुनाह जब हो जाता है तो खुदा फिर आगे चलता है। ये प्लान बी था खुदा का, लेकिन प्लान ए जो था पहले ही मौजूद था। हम यस्सु को कभी भी प्लान बी नहीं कह सकते। प्लान बी वो होता है जो बाद में आता है, लेकिन यस्सु मसीह तो बाद में नहीं आया। पाक कलाम में लिखा है वो अज़ल से ज़बा किया हुआ क्या है? वो खुदा का अबदियत का मबदा है। खुदा की अबदियत का पहला उठा, आमीन, है ही पहला। वो शुरू कहां से होती है? ABC अल्फाबेट ए। तो पहले कौन था? वो था जो है और जो आने वाला है। तो जो था वो ए है, लेकिन जाहिर हुआ बाद में। लेकिन जाहिर बाद में हुआ का मतलब ये नहीं कि वो पहले नहीं था, वो पहले ही था। लेकिन जमीन पर प्लान बी को पहले भेजा गया। और प्लान बी में कौन था? पहला आदम, जमीन का पहला आदम। हालांकि उससे भी पहले एक आदम था जो आसमान पर था, लेकिन आदम नहीं था। आदम होना या यस्सु का नाम लेकर आना वो जमीन पर आकर पैदा होता है। आसमान पर यस्सु नहीं था। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आसमान पर यस्सु को यस्सु नहीं कहा जाता। हालेलुया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो खुदाबंद के दिन रूह में आ गया का मतलब ये कि पुराने अहद में लोग 7वें दिन को खुदा ने मुबारक ठहराया, बात ठहराया, और उस दिन कहा कोई कामकाज ना करना, बस वर्शिप करना, आराम करना, और घर में बैठना, बच्चों के साथ टाइम गुजारना और मेरी तारीफ करना, आराम करना। ये एक रस्म थी, एक यादगार थी अपने बाप खुदा की, आमीन, यहोवा पाक खुदा की। हालेलुया। और अगर वो यहोवा पाक खुदा की याद करता था पुराना अहदनामे के लोग सबत वाले दिन, और सबत 7वां है, तो आज की डेट में हमारा पुराने अहद का यहोवा, नए अहद नामे का जो यस्सु है, वही प्लान ए जो था, वो जो आज जाहिर हुआ है यस्सु की सूरत में। आज का मतलब आज से 2024 साल पहले जाहिर हो चुका, आमीन। जाहिर हो करके पहली आमद में ऐसे आया, बच्चा बना, फिर 12 साल बहस हो रही है हैकल में, फिर चला है आगे 30 साल, और 30 साल में मंजर पर आ गया है, बपटिज्म लिया है, और जैसे बपटिज्म लेकर निकला है बाहर तो आसमान लिखा है, यीशु मसीह के पाक कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील के मुताबिक, लूका की इंजील के मुताबिक, मत्ती की इंजील के मुताबिक, कि जैसे ही उस निकला तो आसमान उसके लिए खुल गया। आसमान जब खुल गया है, आसमान जब खुल गया तो ये वो दिन था जिस दिन यीशु रूह में आया।
ये वो दिन था जिस दिन यीशु रूह में आया। बात को समझे, बात को समझे। ये वो दिन था जिस दिन यीशु रूह में आया। अब यीशु रूह में कैसे आया? जिस पर रूह आता है और जिस में रूह आकर बस जाता है वो रूह में आ जाता है। हालेलुया। समझे, शॉर्ट टाइम लूंगा, हम जल्दी इसको खत्म करें। लेकिन आज का अपना मुखिया कहते हैं, सिरे की टॉपिक ना भूलिएगा, खुदावंद का दिन। हालेलुया। वहीं पर चलते हैं। मैं बातों को गुड़गुड़ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं आपको थोड़ा थोड़ा साथ में आए बाई शाय की बातें भी सिखाता जाऊं। आए बाई शाय नहीं मतलब इर्द गिर्द की बातें भी जो आपके लिए बड़ी संग मिल साबित। खुदावंद का दिन लोग कहते हैं इतवार का दिन है, आधी दुनिया कहती है इतवार का दिन खुदावंद का दिन है, आधी दुनिया कहती है नहीं 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 नहीं, कलाम में लिखा है हफ्ता जो है खुदावंद का दिन है और वो सबत है। हमारे लोग कहते हैं इतवार सबत है, क्रिश्चियंस। यहूदी ट्रेडिशन के लोग कहते हैं नहीं हफ्ता सबत है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो फिर किधर जाएं? क्या दो खुदा हैं? नहीं, वही खुदा जो पुराने अहद का यहोवा था, यहोवा एलोहीम था, वही खुदावंद यीशु मसीह बनकर जमीन पर आया। आया किसके लिए? उसे क्या पड़ी थी आने की? उसे क्या पड़ी थी? मैं एक वाक्य आपको बताता हूं, मैंने पहले भी बड़ी बार बताया। जब सदरक मीसक और अब्दुन्नजू का सिनेरियो, टाइम ऑफ सिनेरियो चल रहा था, टाइम प्रोसेस चल रहा था ईमान की पीक का। माड़ी मोटा ईमान नहीं, माड़ा मोटा ईमान ऐसी भी सही हो नया है, वो वाला ईमान नहीं सी। लाखों लाख के अंदर तीन खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं करेंगे सजदा, करेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं आपके चर्च में। क्यों जाएं? क्या है आपके चर्च में? भाई जी टोल की बड़ी अच्छी आवाज दी है, सो व्हाट, क्या करें फिर? ओ क्वायर बड़ी अच्छी हुंदी है, तो क्या करें? पादरी बड़ा पढ़ा लिखा है, तो क्या करें? आपके बच्चे को ले जाएंगे, ओ भाई नहीं जाना हमने, आपके बच्चे को एडमिशन दे देंगे, नहीं जाना, बोरी राशन की आएगी, वडा आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, फलाना ढमकाना। होता है कि नहीं है? बेटा कुछ भी सच के अलावा यहां से रू नहीं बता रहा हूं, सच है वही बता रहा हूं। ये गयूरी है खुदा की कि आप कहें नहीं चाहिए। और मैं अगर सदरक मीसक के टाइम की बात करूं, जब वो कैद होकर के आए बनी इस्राएल को, जब नबूकदनेस्सर बादशाह ले गया, हालेलुया, जब वो ले गया तो उनको पहले पोर्शन में जब रखा तो उनको कहा इनको इस जगह पर रखो। उसने जत्थे बनाए कुछ लोगों के, जो पढ़े लिखे थे उनको अलग, जो उनके मजहबी रहनुमा थे उनको अलग, जो उनके उन्होंने काम लिया। MBA किया हुआ है, एनओएस काम दिला दो, एडा इन्हों का पादरी है, एनओएस काम दिला दो, एडा सेटअप बना लिया उसने कहा करो काम आप, यानी अक्लमंदी की उसने। अब लीज से पहले दिन तो बड़ा शातिर है, उसने पकड़ा, उसने जनाब दानियल को पकड़ के मुशीर बना लिया अपने साथ। उसको पता लगता था कि ये नबी है, ये बंदा बड़ा फिट है। और सदरक मीसक अब्दुन्नजू को कुछ लोगों के साथ रखा और भी, और बादशाह ने कहा इनको अच्छी खुराक देनी है, शाही खुराक। शाही खुराक में क्या होता है? शाही खुराक में क्या क्या था? शराब में फलाना, मैं शराब में ऐसा कहता है क्योंकि उसे लिखा है, क्योंकि होती हैं ये मैं खारियां जो नबूकदनेस्सर करता था। अब ये कौन ठहरे हैं? मुझे बताओ। भाई ब्रानम कहते हैं कबूतर जो है, कबूतर उससे गंध हजम नहीं होता। कबूतर दुनिया की वाहिद कुग्गी या कबूतर वाहिद ऐसी चीज है जो गंध कभी नहीं खाती। वो मुर्दा चीजें नहीं खाती, जो कव्वे खाते हैं वो नहीं खाती। मुर्दा कभी इधर पे उधर, इधर से मारी छलांग, उधर से है उड़ाया था ना उन्होंने, वापस ही नहीं आया है। कबूतरी आ गई वापस, उन्हें पता ही मेरा नहीं, मेरा काम नहीं होते बढ़ना। उन्हें देखे होगा मुर्दे तार रहे होते हैं पानी पे, मुर्दे जब मर जाती बॉडी तैरना शुरू कर देती है, समझ लें बात को। तो एक से जंप मारा दूसरे पे, टकाटक टकाटक, है ना? क्या ख्याल है? मजा आ रहा है। लेकिन ये क्या करता है? कहता है मैं चाहकर भी नहीं जा सकता। वजह क्योंकि मैं इन बिल्ड अंदर जो मेरे सिफरा है ये हजम ही नहीं करेगा और मैं मर जाऊंगा। और जैसे उसे लगा मर जाऊंगा, इसका मतलब वो बना ही किसी और काम के लिए है। कबूतर या कबूतरी वो वापस आई, पहले बार उड़ाया वापस आ गई, कोई पत्ती नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, दूसरी बार फिर कबूतरी ही उड़ाई। और कबूतरी जैतून का ताजा पत्ता लेकर आई और बताया, ये मुजदा था, ये खबर थी कि भाई जमीन पर अब अमन कायम कर दिया खुदा ने। जो गंदमंद था उसको उड़ा दिया खुदा ने। लेकिन मेरे खुदा साथ है, ये कलाम आपके लिए है, ये मेरे लिए भी है, ये मेरी फैमिली आपकी फैमिली के लिए भी बरकत का बायस, तामीर का बायस, बेदारी का बायस। मेरे ऐसी साथ है ये मेरे। जब सदरक मीसक अब्दुन्नजू को उन्होंने उठाया और ले गए और उनको कहा इन सारे लोगों के साथ में इनको रखो, अच्छा खाना दो, इनको सारी चीजें दो जो ये चाहते हैं ताकि ये फिट रहे, सेहत रहे, इनके चेहरे दमके। और उन्होंने कहा नहीं भाईजान, ये ले जो वापस, नो कॉम्प्रोमाइज।
नो कॉम्प्रोमाइज के मैं किसी बहन के भाई के चर्च में गई हुई शाह बट रही थी मैंने भी खा ली की करते भाई जी हुण मंडी जा रही सी उन्हें क्या भैन जी लवो मैं कह नहीं सकी भाई जी नहीं लेना सुबह का टाइम है दुरुस्त टाइम की दुरुस्त कज़ा नहीं है फिर भी ले ली भाई आप में खुदा की गयूरी होती तो कभी ना लेती। आज कहते बेटी का यहाँ से रिश्ता बड़ा अच्छा रिश्ता है बेटे का वहां से कहते है कौन ने भाई जी गेल नूं देने नहीं करना क्यों नहीं करना भाई ज़ात होंदे ने भाई जी बड़ी गैरत है तुहानू ज़ात दी एक ज़ात है जो हर चीज से बढ़कर है यीशु मसीह की ज़ात जो खुदा की ज़ात का परतो होकर उसकी ज़ात का नक्श होकर जमीन पर आया ओदी कोई गैरत नहीं समझ आ रही बात की गॉड ब्लेस यू सब बोला करें आमीन तो मुझे पता है कि यहां से जो आपके लिए यहां पर से इंटरप्रेट होता है वो मैं नहीं कर रहा होता सादी बात है कोई प्लान्ड चीज नहीं है खुदा का प्लान है और आपको कुछ चीजें बता रहा है कि आप में गयूरी गयूरी कहते हैं गैरत गैरत सबसे बड़ी गैरत अगर आपको किसी चीज की चाहिए तो वो खुदा यीशु मसीह की गैरत रखें आपसे अपने रखें हम बड़े गैरतमंद होते हैं भाई किधर गैरतमंद खुदा ने कहा अपनी खुदी का इनकार कर अपनी खुदी का क्या कर ले तू साथ रहे खुदी का मतलब क्या है अपना आप मैं भी कुछ है वो खुदा कौन है मैनू कुछ कह हो तो ही कौन है मुझ में कुछ कहने वाली होता कौन है मुझे कुछ कहने वाली समझ ना मेरी गल में और उसके बाप का भी घर पूरा करके आऊंगी और उसकी माँ का भी घर पूरा करके आऊंगा और होता है और ये बड़े बड़े बिलीवर तगड़े बिलीवर ऐसा करते हैं शर्म नहीं आती मैं ये कहूंगा पाकलाम पौलुस ने कहा मैं तुम्हें शर्म दिलाने के लिए बात कर रहा हूं और अगर कोई हमारी कलीसिया मुझे पता नहीं होगा लेकिन अगर है तो रूह आज आपसे बात कर रहा है भाई आपसे सरगोशी कर रहा है कि बेटा नो सेल्फ डिनाइंग कर अपने इनकार कर मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे बगैर है कि नहीं अब सेल्फ डिनाइंग अपने आप सेल्फ का डिनाइंग का मतलब है अपने आप को सेल्फ डिनाई कर अपना इनकार कर बोल मैं कुछ नहीं अगर कुछ है तो वो तेरी गैरत है मेरे अंदर उसको कोई मोड़ नहीं कर सकता सदरक में सकता जो को क्या किया गया खाने रखे उसने कहा पीछे कर लो उन्होंने कहा मरवाएगा तू भाई जो उसका उन पर लगाया था बादशाह ने कहा अगर 40 दिन बाद कितने 3-4 दिनों के बाद की बात थी शायद सॉरी अगर गलती हो तो ओके तो वहां पर क्या है उसने कहा जब मैं पेश करूंगा बादशाह के सामने कुछ दिनों के बाद तो तुम्हारी हालतें मरी हुई होंगी तुम्हें खाना नहीं दिया होगा तुम तो रह जाओगे गाड़ी से आज जैसे कहने हफ्ते बाद गोश्त ना पके कल गल बांट दी नहीं मजा नहीं आता समझे ना तो बादशाह ने क्या उन्हें गोश्त नहीं पेश किया होगा सब कुछ पेश नहीं किया होगा नहीं खाना नहीं खाएंगे उन्होंने कहा मरवाओगे उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा तू फिक्र ना कर देख लेना रिजल्ट बड़ा 1 नंबर आएगा और जैसे ही वो दिन पूरे हुए तो बादशाह के सामने पेश किया तो लिखा है कलाम अक़दस ने मेरे और आपकी रहनुमाई के लिए लिखा है लोकां दी कंधा द्वारा जाते नहीं गैर कौमों के लिए हमारे लिए दुल्हन ब्राइड चर्च के लिए लिखा उसने कहा उनके चेहरे जिन्होंने खाना खाया था उनका खाना खाया था उनसे ज्यादा सदरक मिसक और अबदा नजू का चेहरा ज्यादा दमक रहा था ज्यादा चमक रहा था ज्यादा खुश था ज्यादा खुश था ये कौन सी खुशी है भाई कादी खुशी चाह चढ़े ने तानू भुखे मर गए होते तुसी खुशी है ना भाई आमीन हमने यीशु के लिए भूखा रखा आमीन है ना उसके लिए हमने दुख सहना कबूल किया किसी काम के लिए किया है आमीन आमीन जिसके पीछे रिजल्ट है जिसके पीछे अब्दियत है हम उसकी गैरत रखते हैं अपने अंदर आमीन हालेलुया मेरे अजीज अगर आपने ये बात आज रख ली अपने अंदर अब मैं समझता हूं शुरू ही यहां से करें कलाम की गैरत यीशु की गैरत है आमीन कलाम का एक लफ्ज यीशु मसीह की गयूरी है खुदा की गयूरी आमीन कहता है ना तू जमीन पर ना आसमान पर और ना ही पानी के अंदर की किसी चीज की सूरत या मूरत बनाना पुराने हद में पहला नियम था पहला कानून था उसने कहा ना बनाना क्यों नहीं क्योंकि तू बनाएगा और इसे सजदा करेगा और जब तू इसे सजदा करेगा तो मेरी गैरत को क्योंकि मैं गयूर तेरा खुदावन गयूर खुदा मुझे गैरत आएगी क्योंकि जाहिर बनाएगा तो झुकेगा भी उसमें चादर भी चढ़ाएगा ताजपोशी भी करेगा अभी पिछले दिनों में ऊपर हुई थी सारी दुनिया को झंडा लगाकर दिखाया था उन्होंने और सारे ही घुसे हुए थे बीच में कुछ मजा ले रहे थे एंजॉय कर रहे थे अच्छा ऐसे होता है वैसे क्या आपको नहीं पता ये जरूरी है कि तुसी गंदी चीज वेखा नहीं जाओगे तो फिर ही ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आएगी अच्छा ऐसी भी होती है एडे दुध पींदे तुसी नहीं हो सत्त पिंडां ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਏਡੇ ਪਤਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਮੀਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅੰਦਰ घुसा हुआ कोई
वो कह रहे जाके देख ले, हवा ने यही काम तो किया था, ना जाती। उसने कहा दिखाऊं, जब देखा उसने कहा देखने के लिए अच्छा है आंखों को। दुनिया के सबसे बड़े गुनाह कहां से शुरू होते हैं? आंखों से। क्यों पीटता है आपका पादरी औरत नाजेबा लिबास ना पहने? क्यों पीटता है आपका पादरी की औरत मेकअप ना करे? क्यों पीटता है आपका पादरी की औरत जो है मर्दों के कपड़ों की तरह के कपड़े टाइट ना पहने? क्यों पीटता है? क्योंकि गंद देखने से शुरू होता है। लोग कहने, एक बहन थी, खुदा उसे बरकत है और उसे हदायत दे, वो कहती है लोग साढ़े कपड़े वेखना आते हैं भाई जो क्या करो इबादत करन। अब औरत है, थोड़ा सा तमीज और तरीके का शायबा रखना पड़ता है। अगर वो कोई मर्द होता तो मुझसे अपने तरीके से समझा। मेरी बात समझ? ये ख्याल है। जैसे कैथोलिक लोग कहते हैं नहीं नीचे ऐसी खड़ी होते हैं कि सजदे मारने, हालांकि मारते भी हैं, लेकिन आजकल सियाने हो गए हैं। अबलीस बड़ा सियाना, वो कहता अच्छा इंज नहीं ना मानते, तुसी कबूल करते, असं दूजे तरीके ना आ जाने। असं कहने नहीं सजदे करने उनकी बस साल बाद दुपट्टे चढ़ा दिया करो, सजदा नहीं करना है इधर बार, लेकिन इनू नहीं हटाना। उन्हें बोलो ना इससे हटा दो भाई, तो उनकी जान निकल जाएगी, आप पे केस ठोक देंगे वो। होता कि नहीं? होता। वजह अबलीस नो अपनी बड़ी गैरत है कि मेरा प्लान फ्लॉप हो गया तो मेरा तो काम ही खत्म हो जाना। हम में कोई नहीं, हम कहते हैं ओके तेरी गैरत नो असी झंडे लावांगे, नहीं लगाने उसकी गैरत को, हमने यस्सु की गैरत को झंडे लगाने, झंडा गाड़ेंगे यस्सु के नाम का, बनेंगे मरकज मुकद्दस कलाम का। मरकज मुकद्दस कलाम का मतलब है कलाम जहां पर पाया जाए, मौजूद, जो मरकजी जगह हो। और आज मरकजी जगह जहां पर कलाम पाया जाता है, वक्त का कलाम, वक्त का टाइम मैसेज पाया जाता है, वो दुल्हन है। राइट? हालेलुया, हालेलुया। जागते रहे मेरे अजीजों, खुदावंद का दिन। तो क्या हुआ जब वो पहुंचाए गए तो लिखा है कि उनके चेहरे दमक रहे थे। और फिर अगले सिनेरियो में खुदावंद वहां पर बादशाह ने ऐलान किया कि अभी यहां पर एक मूरत बनवाई गई है, तो सारी कौम जो है हमारे भी और आपके भी मिक्स होकर के उसके आगे क्या करेंगे, जब म्यूजिक चलेगा तो सजदा मारेंगे, सजदा करेंगे। आमीन। और इनको भी बुलवाया गया और ये भी बीच में थे, लाखों लाख की भीड़ में 3 लोग। मीन्स के आटे दे विच नमक बराबर भी नहीं। मीन्स के ए छोटे गले ना डर। मीन्स के तुम दुनिया का नमक हो। हालेलुया। इसके बड़े मतलब बनते हैं, लेकिन अभी हम उसी पे चलते हैं। इनके अंदर इतने से लोगों में इतनी बड़ी गैरत, पीक का ईमान। पीक का ईमान क्या था? उन्होंने कहा जैसे म्यूजिक लगा और उनको बजा के म्यूजिक लगेगा, चलेगा म्यूजिक नया करना, और इसकी आवाजें जो नरसिंह की हैं चलेंगी, सारा म्यूजिक वही जो आज हमारे चर्चों में या वहां पर हैकलों में चलता है, वही म्यूजिक था। सारा कुछ सेम सेम है, बस रूह का ही फर्क है और करतूतों का भी फर्क है, अमाल का भी फर्क है। अमाल करतूत ही होते हैं। यहां पर अमाल की किताब में कुछ करतूत है। करतूत कहते हैं कुछ किया है, करके दसिया है। आमीन। और कुछ करतूत क्या है, बाबली और कसबी जो है उसके लोगों के। मैंने बताया ये रोमन अंपायर है जिसका आगाज हुआ। आमीन। तो वहां पर क्या हुआ, चलते जाएंगे, वहीं पे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। क्या मामला है, जब म्यूजिक लगा, म्यूजिक पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने, बजा रहे, चलता है, यही था ना। और जैसे ही म्यूजिक बजा, ध्यान देते वही कुछ हो जाना, ध्यान ही नहीं देता, बजदा रहे म्यूजिक, लगे रहो भाई तुसी अपना काम। साथ म्यूजिक भी बज गया और लोगों ने सजदा भी ठोक दिया और ये खड़े हैं पायनुरी। और जब सब नीचे सजदे में चले जाएं, 3 खड़े हो तो साफ साफ नजर आता है कि ऐ खलोते हुए। इसका मतलब समझ दो भाई ब्रानम जो हमारे जमाने की प्रॉफेसी लेकर आए एलिया की नाम, अपने ही मुल्क में अपनी ही हुकूमत और अपने ही हुकूमती जो मेन जो उनका हुकूमती मजहब था, जिसको कैथोलिक कहते हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा इसको माना जाता है, उनके खिलाफ उंगली उठाई, उनके खिलाफ उंगली उठाई और उनको बताया, इंटरप्रेट किया कि खुशकी का हैवान तुम में से कौन है और तई का हैवान कौन है। अमेरिका और रोम दोनों को बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को अपना इख्तियार दोगे। रोम को इख्तियार देगा अमेरिका, और दिया हुआ है आज भी। और पूरी दुनिया पर जो हुकूमत करेगा वो रोम करेगा। आमीन। तो हम चलते हैं वहीं पर। हुआ क्या, जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक गजब आया इब्लीस के अंदर, अपोज हो गया, उनके मुखालिफ हो गया
और फिर अगला सेशन कौन सा चला? ट्रैबुलेशन का सेशन। अब जब ट्रैबुलेशन का सेशन है तो भाई ब्रैनम कहते हैं, मुझे बहुत बरकत मिलती है इस बात को, वाक़या को बयान करते हुए। भाई ब्रैनम कहते हैं कि सिनेरियो चल रहा था और जैसे ही सजदा नहीं किया तो ऊपर खुदा भी देख रहा हो। आपकी एक एक एक्टिवेशन जो आप कहीं पर्दों के पीछे करते हैं, अच्छाई या बुराई दोनों, ईमानदार की वो देख रहा हो। ध्यान बन लियो पल्ले अजकल, नहीं तो पीछे जरा नोट बने होंगे ना उलझे खुले ना, कोई खोल कर ना ले। समझ रहे को नहीं समझ रहे? तो कहते हैं खुदावन देख रहा था, लाखों लाख करूबी ऊपर से देख रहे हैं। ऐ की हो रहा जमीन पे? ऐ सारे सजदा ठोक दिता, इन्हें नहीं ठोकिया। ऐ 3 बंदों का हुण की होएगा? फरिश्ते कहते हैं खुदावन ये इन्होंने गैरत दिखा दी, अब इनका काम हो जाना यहाँ पे, तो हमें इजाजत दे, हम इनको उठाएं और इनको ले आए। नहीं, थोड़ा वेट करो, आगे देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं। मुझे बताइए, क्या खुदा को नहीं पता था आगे क्या होता है? खुदा को सारे ही पता था। अगर खुदा को पता होता कि आदम और हवा की तरह गिर जाएंगे, खुदा उठता और उन्हें गिरने ना देता। खुदा उनको आजमाइश में पड़ने ही ना देता। लेकिन खुदा को पता था कर लो जो करना। फरिश्ते भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी आज। इनको मैंने कुछ नहीं होने देना। इनकी जो केमिस्ट्री का ताल्लुक है जमीन से, हमारी जो बॉडी है ये कीमियाई अज्जा से बनी है। मेरी गल समझे हो कि नहीं समझे? ये कीमियात में, दुनिया नेचर के अंदर, इस पर आग लगेगी तो तपश लगेगी, इसको सुई चुभोगे तो चुभन होगी, है ना? इसको मारोगे तो दर्द होगी कि नहीं? इसको काटोगे तो लहू निकलेगा ना? तो ये 5 सेंसेस का जो बॉडी है उसे पता था ये 3 लोग 5 सेंसेस के अंदर है। हवा से खमसा यानी 5 तरह की छूले, खाना, चखना, है ना, सूंघना और फलाना ढमकाना जो भी होती है। गलन पकड़ दे, बेशक तुम कुछ घट पढ़े लिखे ने, लेकिन गला पकड़ दे जाएगा। यानी कंपोजिशन है इंसान की, पूरे का पूरा इंसान है, सब कुछ इसके साथ होगा यार। इसके बुरे हालात शुरू हो गए हम, क्योंकि इसने मेरे लिए गैरत दिखाई है, अब दुनिया इसके खिलाफ हो जाएगी। अब जैसे ही खुदावंद ये देख रहा है तो फरिश्ते कह रहे हैं भेज। भाई ब्रानम कहते हैं मीकाईल ने कहा अब इनका काम खराब होने लगा है, खुदावंद मुझे इजाजत दे, मैं जाऊं नीचे। उसने कहा नहीं, रुको जरा देखते हैं। अब उनको आगे ले जाया गया, पेश किया गया। पेश होने के बाद उसने कहा सजदा क्यों नहीं किया? उसने कहा नहीं करेंगे। उसने कहा तुम्हें पता है ना मैंने क्या अनाउंस किया है? भट्टी में डाला जाएगा। उसने कहा तू डाल दे भट्टी में, हम तेरी मूरत को है बादशाह सजदा, ऐ रोम हम तेरी डिनोमिनेशन को सजदा करने वाले नहीं है। कर ले जो अमल कर ले, हमारे का मारते। हालेलुया, तारीफ हो खुदा के नाम की। क्या बात है, बड़ी जबरदस्त बात, अच्छी बात है, अप्रिशिएट किया करें खुदा के जलाल। कर ले जो मर्जी, हम साग बात खा लेंगे, तेरा गोश्त तेरी शराबें नहीं हमने पीनी, नहीं पीनी। हमने टाइम से चलना है, जो कलाम का टाइम है वही चलना है, उसी के मुताबिक चलना है, उसी के मुताबिक इशा लेनी है, उसी के मुताबिक सारा कुछ करना है। हम इशा रबानी को पाक शराकत नहीं कहते, हम इशा रबानी को इशा रबानी कहते, कलाम कहता है वो इशा रबानी है, उसके पीछे मुकाशफा है। तो हमने तेरा सिस्टम नहीं मानना। उसने कहा देख लियो। अब ऊपर वो लगा, कहता है मैं खुदावंद जानता हूं इसको। फरिश्ता कहता है ये बंदा बड़ा खतरनाक है, इसने उठाना, इसने फेंक देना, ये टलने वाला नहीं है, ये खेल खोल नहीं कर रहा इसके साथ। कहता है रुक जा, इजी हो जा, चलने दे आगे स्टोरी क्या होती है। खुदा क्या कहता है आगे चलने दे। और ये नबी बयान कर रहा है कि इस तरह का सिनेरियो था। जब थोड़ा सा वाक़या आगे, उसने कहा इतने गुना है ना, 10 गुना क्या कर दो, तेज कर दो। किले आस्ते ते हल्का सी, यस्सू दे लोकां आस्ते डबल है। दुनिया नूं पता नहीं किन्ने किन्ने 2-2 3-3 4-4 20-20 25-25 है, 2-2 10-10 कोड़े वजदे हुण। यस्सू नूं पूरे उन्होंने फड़काया। और ये कोड़े मैंने एक सोशल मीडिया पे देखे कि कोड़ा किस तरह का था। और जब एक बंदे की पीठ पे वो लग रहे हैं तो लगते जा रहे हैं, 40 जब तक पूरे हुए हैं तो पूरी उनका जो कमर थी और ये सारी रिब्स जो जिसको पसीने तक वो जाते थे, और कोई हिस्सा बचा ही नहीं था कि जहां पर वो स्ट्रिप ना लगा। स्ट्रिप मतलब कोड़ा, उसका छांट ना लगा। समझे मेरी गल? तो यानी कोई जगह बची नहीं, एंड कर दिया। और बची खुची कसर जो है ना, वो आगे जाके सर पे कांटों का ताज, इधर नेजा उधर नेजा है, और कुछ दूसरी इखलाकी बदतमीजी उसको बरहना कर दिया है। उसकी बादशाही, उसका जो चोगा था, कहते थे बादशाह जैसे बांधी, कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई पीछे छोड़ा। अच्छा छोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि हमारी हर तरह के गंदे करतूत का वहीं पर कीमत दी है। ये ना क्यों कि प्यो टुरया सीधे कुछ कीता कोई, तू कहता प्यो, हम तुझे क्यों यस्सु बाप कहें, हम तुझे क्यों कहें कि तू ही पुराने अदनामे का नए अदनामे का ये हवा है, क्यों कहें? बोलेगा कहोगे बेटा,
یہ تب پتہ چلے گا جب قیمت میں تمہیں پتہ چلے گی کہ میں نے تمہاری دے دی ہوئی. جب تم مرنے کو ہوگے تو تمہاری قیمت دی ہوگی اور تمہاری زندگی واپس آئے گی. جب تم قید میں ہوگے اور میں تمہیں نکال کے لاؤں گا پھر تمہیں پتا ہوگا قیمت دی تھی میں نے. آمین. جب کوئی آئیں بائیں شائیں کا بندہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا تو میں سپر نیچرل طریقے سے معجزہ کر دوں گا تمہارے ساتھ, پتہ نہیں کدھر سے مدد ہو جائے گی. تو اس کا مطلب میں نے تمہاری قیمت دی ہوئی تھی. تو کوئی چیز چھوڑی نہیں. آمین. اب یہ چلے ہیں, بٹی کی آنچ تیز ہے, اور جیسے ہی قریب پہنچے ہیں تو فرشتے جبرائیل نے کہا خداوند اب اینڈ ہو گیا, مجھے بھیج دے, میں جاتا ہوں فوج کو لے کے. اس نے کہا رک جا بیٹا, یہ اسپیشل کیس ہے. اب یہ برائڈ ہے, یہ کوئی عام کلیسیا نہیں. یہ ایویں نہیں کہ بپتسمہ تے لے لیا اسی عیسائی ہونے ہاں ہم میسج لیور ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کتھے ہوتے ہیں. کتھے ہوندے بھائی تسی میسج دیو, اب بھائی جی آ کام پی گیا ہی, وہ پی گیا ہی, اتھوں انج پی گیا ہی, ادھروں انج پی گیا سی. بیٹا آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ او بھائی جی اوتھے گئے ساں, اتھوں ایتھے آئے ساں, اوتھے انج, پھر صبح کی نہیں گلی. پھر بھی آپ کیا ہیں انج تھوڑی انج ہوندا جڑا اے دسن دے. اور یہ ہوتا بڑا کم ہے زمین پر, نہ ہونے کے برابر. جو انہوں نے ریکارڈ سیٹ کیا بائبل میں اور کہیں سیٹ نہیں ہوا, ہوگا بھی نہیں. میری بات ہے, جو یسوع نے ریکارڈ سیٹ کیا دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اسی طرح اس کی برائڈ بھی جو ریکارڈ سیٹ کرے گی نا, سمجھ رہے نا میری بات, اسے کچھ بیٹ کرنے والا نہیں. ہاللیلویا. یہ ہمارے لیے نقشہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اسپیشل کیس تھا, خداوند نبی کہتا ہے خداوند نے کہا یہ اسپیشل کیس ہے, کوئی نہیں جائے گا. اور جیسے ہی انہوں نے ایسے کر کے ایسے تھرو کیا, ان کے ہاتھ جل گئے. اور یسوع مسیح کو پتا تھا کہ اس کی حدت کتنی ہے, کتنی گرمی ہے اس. جیسے یہ جائیں گے ان کا ماس ایسے ہی پگھل جائے گا اوپر سے. اور جیسے ہی پھینکا, مجھے بتائیے یہاں پر ہم نے لوکا کی انجیل میں پڑھا کہ لوگ کہیں گے یہاں ہے وہاں ہے, کہیں مت جانا. تو میرا پھر سٹائل کیا, طریقہ کیا ہوگا, انداز کیا ہوگا؟ جب میں آؤں گا تو کیا ہوگا؟ جیسے بجلی مشرق سے کوند کر پچھم ہے, پورب سے کوند کر پچھم کو جاتی ہے. بجلی کی سپیڈ پتا ہے کسی نے کی؟ جو بجلی چمک دی ہے پتا ہے سپیڈ کی ہے. جو پڑھے لکھے ہیں, جو کم از کم 8ویں تک پڑھے ہیں, ان کو پتا ہوگا. سائنس میں لکھا ہے آواز کی سپیڈ اور بجلی کی سپیڈ, آمین, اتنی تیز ہے. مجھے بتائیے جب آسمان پر بجلی چمکتی ہے تو پہلے کیا آواز آتی ہے یا چمک آتی ہے؟ چمک آتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے کڑ 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 کڑ, پیچھے ہوتا ہے نا, ایسے ہوتا ہے کڑ کڑ کڑ. تو آواز کی سپیڈ بجلی کی سپیڈ سے کم ہے. آواز کی بھی سپیڈ بڑی تیز سپیڈ ہے, اور بجلی کی سپیڈ اس سے بھی تیز ہے. یسوع کہہ رہا ہے میں اس سپیڈ سے ہوں گا. سمجھ آنٹی گل دی آئی تو ہوئے گی. اب یہاں پر جب یسوع کہہ رہا ہے رک جاؤ, خدا کہہ رہا ہے, پرانے عہد نامے کا یہوہ کہہ رہا ہے رک جاؤ, تو ہمارا ایمان ہے پرانے عہد نامے کا یہوہ ہے, ہمارے زمانے کا یسوع ہی ہے. دو گلا نہیں ہے, یہ ایک ہی گل ہے. آمین, سمجھ لگے. تو جب اس نے کہا ہوگا رک جاؤ تو کتنی سپیڈ سے آیا ہوگا. جیسے ہی تھرو کیا اچھا سے, وہ ان سے پہلے وہاں پہ موجود تھا, اس نے ساری آگ کو ٹھنڈا سے. خداوند کا نام مبارک ہو. وہ اپنے لوگوں کے لیے پھر دیر نہیں کرتا. کہتا ہے خداوند آنے میں دیر نہیں کرتا, جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں اس طرح کی دیر نہیں کرتا. ہاللیلویا. وہ رکا اس لیے ہے کہ کچھ نمک پڑا ہے زمین پہ, کچھ پڑے ہوئے ہیں ایسے جو ہیں برائڈ پر تھوڑے سے سلو برائڈ ہیں, انہیں تھوڑا سا ایکٹیوائز کرنے کے لیے. وہ پیسیو بول رہے ہیں, پیسیوائز ایکٹیوائز, سمجھتے ہیں, تیز کرنے کے لیے. میں کچھ بیدار کروں, کچھ اور کروں گا. ہاللیلویا. تو میرے عزیز وہ یسوع آیا, خدا آیا, اور اس نے آ کر اس آگ کی حدت کو, اس کو کیا کر دیا. مجھے بتائیے یہ آگ کس سے جلتی ہے؟ تھوڑا گہرے میں چلیں. آگ جو جلتی ہے کیسے جلتی, کتنے ہوتے ہیں اس میں آئٹمس, کچھ تھوڑا بہت پتا ہے؟ اوکے. آگ ایسے ہی نہیں جلتی. جب آپ ایسے جلاتے ہیں, آمین, تو ہوا کے اندر آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں ہوتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آکسیجن خاص طور پر جو آکسیجن نارملی چلتا, تو جب وہ آگ جلتی ہے, جب آپ اسپارک کرتے ہیں تو آکسیجن کے ساتھ مل کر یہ آگ کیا ہے اور بھی زیادہ وہ شعلہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, سائنس کا ایک قانون ہے جس کو آپ پڑھیں گے, ہو سکتا ہے اس میں اوپر نیچے کچھ بات ہو, لیکن ایسے ہی ہے. تو آگ دہکتی ہے. مجھے بتائیے جو زمین کا قانون ہے
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और H2O का, पानी का, ठीक है, और ऑक्सीजन से इंसान जीता है, हाइड्रोजन से पौधे जीते हैं। आमीन। पौधे हाइड्रोजन कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम का मतलब वो ऑब्जर्व करते हैं, सॉरी, वो उसको लेते हैं, आमीन। और इंसान हाइड्रोजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो इंसान इस्तेमाल करते हैं, आमीन। और इंसान हाइड्रोजन छोड़ता है जो पौधे इस्तेमाल करते हैं। आमीन। समझ आनी गल दी? समझ नहीं? H2O कहते हैं, मतलब इसका पानी का एक फॉर्मूला है H2O। ओके, तो ये जो जमीन पर है, इसको ठंडा करने के लिए खुदावंद ने आसमान से उन सारी जो एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इन सारे का जो मिलाप था, जिसकी वजह से शोले बन रहे थे वहां पे, उनके बीच में आकर अपना एक गलाफ बना दिया। आमीन। और वहां पर लिखा है, इतनी स्पीड से आया, इतनी स्पीड से कि उनका पाक कलाम में लिखा है एक बाल जलने की बू नहीं आ रही। God bless you. Praise God. तो बाल ना जलने की बू का मतलब समझते हैं कि बाल तक नहीं जलने दिए, इतनी स्पीड से यार। आमीन। क्यों स्पीड से आया? क्योंकि ये स्पेशल केस है, ये खासुल खास लोगों के लिए, ये आम मामला नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हम यहाँ पर क्या सोच के बैठे हैं कि हम कौन होते हैं? हम स्पेशल होते हैं, स्पेशल। हम ईमान रखते हैं खुदा हमारे लिए भी बिजली की स्पीड से आएगा। जब भी हम पर कोई ट्रैबुलेशन आएगी, जब भी मुसीबत आएगी, ऐसे आएगा। अब मुझे बताइए, वो जो रथ आए थे, एलिया को ले गए, किस स्पीड से आए होंगे? वो बेचारा कहता ही रह गया है, मेरे बाप मुझे अकेला छोड़ दिया तूने, ऐसा ना कर। उसने फौरन ऊपर से चादर छोड़ दी। क्या ख्याल है? आमीन। हनूक को जब उठाया होगा, लिखा गायब हो गया, ऐसे गायब है, किधर गया? मैं कोशिश कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज ना भी कानून पूरी तरह समझाने की। आमीन। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, क्योंकि यहाँ पे हम एज ए फैमिली बैठे हुए हैं, खुदावंद की फैमिली, फैमिली ऑफ गॉड। खुदावंद के दिन रूह में आ गया, और जब रूह में आ गया है तो हुआ क्या है? ये खुदावंद का दिन कौन सा था? मुसीबतों से भरा हुआ खुदावंद का दिन। आमीन। अब ये बंदा पितमस के जजीरे में जलावतनी काट रहा है, इसको बैनिश किया गया है, इसको अब शहर से बाहर निकाला गया है, जैसे किसी को काला पानी भेज देते हैं, साइडों पर समुद्र है, वहां पर बीच में जजीरा है। मुझे बताइए, ये तो बंदा, वो जो कचमच होते हैं उन्हीं से बच जाए तो बड़ी बात है। आमीन। वो तो नहीं देखते कि अच्छा 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 तुसी रसूल होंदे हो, तानू नहीं खाना, वो तो खा जाएंगे। आमीन। लेकिन खुदामंद ने बनाई है ना पूरी मखलूक, वो बोलेगा तुसी किंज खाओगे? आमीन। हैं? आमीन। बनने वाली चीज बनाने वाले से कुछ कह सकती है? कुछ नहीं कह सकती। उसने जिंदा बोलेंगे प्लान है मेरा, मैंने प्लान के लिए से यहां पर पहुंचाया, तुम क्या समझते हो? उसने सबको रोका होगा। आमीन। और उसी टाइम पर पाक कलाम में लिखा है, मैं रूह में आ गया। मुश्किल वक्त में खुदावंद का दिन, खुदावंद का दिन का मतलब है वो दिन जिस दिन आप रूह में आते हैं। आमीन। खुदावंद का दिन कोई क्रिसमस का दिन नहीं, नो नेवर। खुदावंद का दिन कोई ईस्टर का दिन नहीं, आमीन। खुदावंद का दिन कोई नवे साल का दिन नहीं है, ना ही ये कोई इतवार, हफ्ता, सोमवार, मंगल, बुध मीटिंग रख लो, भैणा दी मीटिंग रख लो, है ना, कपल डे, फलाना धमकाना डे आएंगे, या क्रिसमस नाइट है आज। क्रिसमस नाइट पे क्या होना भाई जान? ये जी कपल फॉर क्राइस्ट के प्रोग्राम, कपल फॉर क्राइस्ट का मतलब समझ दो किन्हों कहते हैं? कपल फॉर क्राइस्ट, शादीशुदा जोड़े जो यीशु के लिए, शादीशुदा जोड़े जो यीशु मसीह के लिए। उनमें कुछ बुजुर्ग भी बिठाए होते हैं, है ना, जिन्हें उन्होंने बहुत हाल लगाव होता है, और कुछ यंग भी आए होंगे ने। फुल माहौल चल रहा होता है, माहौल का मतलब गलत ही नहीं होता, लेकिन वहां पर गलत ही होता है। आमीन। माहौल का मतलब कुछ दिखाना होता है वहां पे, असली आमीन। होने। तो कराइस के लिए एक प्रोग्राम में मैंने बताई थी पहले, कोरा बताता है किसी उसमें, किसी प्रीचर ने बताया कि यीशु के लिए एक प्रोग्राम रखा गया, कपल फॉर क्राइस्ट। आमीन। सारे एक दूसरे गले मिले हैं, बहन क्या हाल है, बड़ा अच्छा सूट पहना है, वेरी नाइस है, मतलब आपको यार वाह वाह वाह, कहां से बनवाया? बंदे बंदे ना, बीबियां बीबियां ना, गला बादड़ी है। यीशु मसीह आए हैं बाहर से, किसी ने नहीं देखा, देख रहे हैं इधर, भाईजान मैं भी हूं ना, हेलो मैं भी हूं ना। उसको कहा नहीं, क्योंकि अंदर बेहिसी है, पता ही नहीं कि आया भी है कि नहीं। आमीन। लगा उसी के लिए है प्रोग्राम, लेकिन उसको, उसका किसी को कोई पता नहीं, घूम फिर रहा है, जाके आगे स्टेज पर बैठ गया सीढ़ियों पे। ये कर की रहे नहीं यार? हेलो भाई, भाई मैं आ गया हूं यार, सब लगे हुए हैं, किसी को लब्बे तो फेर है ना, किसी को सुना जाए तो फिर नहीं। आमीन। सुना किसको जाएगा? जिसके कान हो वो सुने। आमीन।
भाई रूह की सुनेगा वो जो रूहानी होगा। आमीन। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के, कपड़ों के ख्याल में, 19-20 के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। आमीन। अब रूहानी बातें आती कहां से हैं? रूह के जरिए से। अब रूह आकर बैठ गया, खड़ा भी होगा, भाईजान देख लो टाइम मेरे को शॉर्ट है, मैं जाना भी वापस। किसी ने नहीं देखा, वापस आया, फिर मुड़ के देख रहा है पीछे शायद कोई आवाज आ जाए, नहीं आई। करते 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 यीशु कलीसिया से बाहर। ऐसा नहीं कि यीशु आया नहीं, आया, लेकिन कलीसिया ने उसे भाव ही नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। आमीन। ऐसा नहीं कि यीशु यहाँ पर मौजूद नहीं, मौजूद है, लेकिन हम में से बतेरे उसे ऑनर नहीं देते, इज्जत नहीं देते। पाक कलाम में लिखे तो अपने दिल का दरवाजा खोल, मैं उसमें आऊंगा, आमीन। बैठूं, आमीन, मैं और मेरा बाप आएंगे। आमीन। गाल मेरी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझे बात। यहाँ पर खुदावन का दिन वो दिन होता है जिसमें रूह में आता है। यस्सु का रूह का दिन किस दिन स्टार्ट हुआ? जब उसने बैप्टिज्म लिया। हालेलुया। देखिए आसमान उसके लिए खुल गया, और आसमान से रूह जो है वो कबूतर की मानिंद, कबूतर नहीं है, फिल्म च कबूतर वेख्या होगा, कबूतर ही है, कबूतर ना बनाओ, वो एक नूर था जो रूह की हालत में उतरा, ऐसे जैसे कबूतर की मानद, डव की मानद फ्लाई करता हुआ कोई परिंदा उतरता है। कबूतर नहीं था। अगर कबूतर था तो कबूतर भी लोगों ने पकड़ लेना था, आमीन। कबूतर नहीं था। समझेंगे नहीं समझे? आमीन। वो कबूतर की मानद था, शबी लेकर उतरा। आमीन। 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 और आकर कहां पर आ गया? यीशु मसीह के ऊपर, और फिर कुछ लम्हों के बाद यीशु मसीह के अंदर। आमीन। हालेलुया। तो उस दिन इब्ने आदम का दिन शुरू होगा। आमीन। हालेलुया। इब्ने आदम का दिन शुरू हुआ, और फिर इब्ने आदम का दिन कहां पर क्या कर रहा है? यीशु मसीह आसमानों पे जा रहा है उसी दिन के अंदर। आमीन। फिर 120 की जमात के लिए आ रहा है, दोबारा वापस आया, और फिर वहां से दिन शुरू हो गया। जब कलीसिया 120 की जमात पर रूह उतरा तो खुदावन का दिन था, वो रूह में आ गए। आए थे कि नहीं? क्रिसमस तो नहीं सी उस दिन, ना वड्डा दिन सी, कुछ भी नहीं सी, कोई ईस्टर की नहीं, कुछ नहीं। हाँ, यहूदियों की ईद चल रही थी, वो एक अलग केस है, क्योंकि अब ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी। अब मामला क्या है? मसीह में जब हम आते हैं तो ना खतना, ना ही शरीयत, ना कुछ 19-20, बस मसीह जो कहता है वही करना है हम। समझ आनी गल दी? मतलब क्या कि रूह में आने वाला जो दिन, जिस दिन आप रूह में आते हैं, वो खुदावंद का दिन होता है। और मजे की बात बताऊं आप, फिर आप रूह में आते ही रहते हैं। रूह में आके कलाम करते हैं, रूह में आके बात करते हैं, रूह में आके दुआ करते हैं, रूह में आके वर्शिप करते हैं, रूह में आके तबला बजाते हैं, रूह में आके प्रिजाइड करते हैं, और ये रूहानी कलीसिया है, ये मसीह का बदन है। आमीन। रूह में आके पादरी बनते हैं, रूह में आके मुबशर बनते हैं, रूह में आके रसूल, मुबशर, चरवाहा, उस्ताद बनते हैं। रूह के बगैर कोई कुछ नहीं, नथिंग। अगर आप रूह के बगैर हैं तो आप कुछ भी नहीं है। और भाई बहनों, अपने एक मैसेज में कहते हैं कि रूह के बगैर, जिसने रूह को नहीं हासिल किया, खुदावन के दिन रूह में नहीं आया और रूह को प्रिजर्व नहीं किया, रखा नहीं अपने अंदर, रहने नहीं दिया, जगह नहीं दी, उसका रैप्चर नहीं होगा। वो भूल जाए जितना मर्जी मैसेज का आलम हो, जितना मर्जी लाइनें जानता हो, जितना मर्जी स्टडीज जानता हो, कुछ भी नहीं होगा, उसका कुछ नहीं बनेगा। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब है रूह इतना जरूरी है। जी भाईजान, बिल्कुल जरूरी है, रूह के बगैर कुछ नहीं। हालेलुया। खुदावंद के दिन रूह में आ गया। खुदावंद का दिन कौन सा दिखाया गया? लिखा है खुदावंद का दिन चल कैसे रहा है? दुनिया में मुसीबत उसे इतना तंग किया हुआ है, और वो बड़ा हुआ है कहां पर? पितमस के जजीरा में, दुख की जगह पर, मौत की जगह पर, और वहां पर खुदावंद उस पर जाहिर हुआ है। हालेलुया। इसी तरह मसीह की खातर हम पर जब बहुत, मसीह की खातर, अपने करतूतों की वजह से नहीं, मसीह की खातर अगर हम पर कोई मसला आता है, मुसीबतें आती हैं, तो खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता, वो हमारे लिए अपने रूह को भेजता है, और वो हमारे लिए दिन स्टार्ट हो जाता है। रूह का दिन स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम कहते हैं आज दिन बड़ा ब्लेसफुल रहा है, बड़ा रूहानी दिन रहा है। हालेलुया। अब यहां पर वो कहता है, मैंने अपने पीछे क्या देखा है? नरसिंगे किसी एक क्या है, सॉरी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही सबर में तुम्हारा शरीक हूं। कहता है खाद जो लिख रहा है, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਸਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। आमीन। ਤੁਹਾਡੇ और मैं भी सब कुछ से आए, आमीन। यानी हम एक ही हैं। खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस खुदा दे कलाम है, कलाम सुनाया जा रहा है, कलाम हर जमाने च मुकाशफा लेके आया, और ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਹਿੰਦਾ मैं की कर रहा गवाही दे रहा सा, तो ਉਹਦੀ वजह तो मैं टापू च पहुंचा दिता। टापू कहते हैं जजीरे में, और पितमस के जजीरे में पहुंचा दिया गया। टापू में था जो पितमस का कहलाता है कि खुदावन के दिन
रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी एक बड़ी आवाज सुनी कि ये जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख ले। न रूह में आने के बाद खुदा कुछ दिखाता है आपको। जब आप रूह में आते हैं, सामने देखें, जब आप रूह में आते हैं तो फिर खुदा मेरे अजीजों आप पर कुछ रिवील करता है, दिखाता है। लोग कहते हैं भाई जी ऐदा की मतलब ऐदा नहीं, आप खुद खुदा के रूह में आ जाए, खुदा से खुदा का रूह मांगे जो मांगने वाली चीज है, फिर खुदा आपको बताएगा अगला आगे क्या करना है, तुमने आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। इसको बताया और इसको सारा कुछ बताया और इसी का बताया हुआ इंटरप्रेट हो रहा है, आज सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है 7 कलीसियाई ज़मानों के फरिश्तों के जरिए से। इसको ये शरफ हासिल हुआ कि इसने लिखा 7 कलीसियाई ज़मानों के फरिश्तों को। क्या लिखा, उसका मतलब क्या था, ये आखिरी जमाने के फरिश्ते ने समझाया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जमाने के आखिरी कलीसियाई फरिश्ते ने, भाई मैरियन विलियम ब्रैनम साहब जो आखिरी जमाने में आए थे, आमीन, जो लुदीकियाई कलीसियाई जमाने यानी लुदीशियन एज में आए, यानी जब कलीसियाएं अमीर तरीन है उस जमाने में आए, शाही बेगमात यानी औरतें जो बहुत अमीर, यानी कलीसियाएं जो बहुत अमीर हैं उस जमाने में आए। आज की औरत भी, भाई ब्रानम कहते हैं अगर आपने देखना है कि कलीसियाओं का क्या हाल चल रहा है, कैसी हैं कलीसियाएं दुनिया की, तो अपने जमाने के इर्द गिर्द की खवातीन पर नजर करें, वो किस तरह चल रही। अगर वो ठीक नहीं चल रही तो समझ लें कलीसियाएं ठीक नहीं चल रही। औरत कलीसिया की तस्वीर है, आमीन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी ही कलीसियाएं, सारी ही औरतें ठीक नहीं चल रही, कुछ ऐसी भी हैं जो ठीक चल रही। इसका मतलब है कुछ ऐसी कलीसिया भी है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सही चल रहे हैं। हालेलुया। उसने कहा मैं अपने पीछे नरसिंगे की आवाज सुनी, एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसिया के पास भेज दे, यानी इफिसुस, स्मुरना और पेरगमन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे ये कहा था, और फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे। ये सारी रोया थी जो उसने देखी। ओथे पितमस दे उत्ते कुछ नहीं सी पिया था, ये रोया में देख रहा है। और उन चरागदानों के बीच में आदमजाद का सा एक चेहरा शख्स देखा, शक्ल उसकी आदमी की तरह की थी, जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी, और उसके बालों, उसके पांव और उसके पांव उस खालस पीतल के से थे जो पट्टी पर तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। आमीन। ये बात आपके सामने बताने का मतलब ये है कि ये बातें सब उस टाइम पर इसे दिखाई गई जब ये रूह में आ गया, और जिस दिन ये रूह में आया इसने उसे खुदावंद का दिन कहा। हालेलुया। खुदावंद का दिन होता ही उस दिन है जब खुदावंद आता है रूह की हालत में, और आपके लिए भी वो दिन खुदावंद का होता है। खुदावंद अपने दिन में आपको जब रूह में लाता है तो इसका मतलब है उस दिन खुदावंद उतरा है आपके लिए, और वो दिन आपके लिए खुदावंद का दिन हो जाता है। आमीन। मुझे बताइए, ये जैसे मिसाल के तौर पर अभी क्रिसमस और बहुत सी और चीजें आती हैं साल के बाद, तो उसमें रूह में कितने होते हैं लोग? रूह में कितने होते हैं? मुझे तो नहीं लगता कोई रूह में होता है, मुझे लगता है सब एंजॉय कर रहे होते हैं। मेरी बातों को सिर्फ एक साइड पे नहीं आपने देना कि ये तो टोटली उसमें नहीं, मैं उस तरह से बात नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें जो दुनिया आज कर रही है, मसीहत कर रही है, क्रिश्चियन कर रहे हैं, वो खुदावंद का ऑर्डर नहीं है, किसी भी हवाले से ऑर्डर नहीं है। लेकिन दुनिया कर रही है और देखा देखी में कर रही है। लेकिन आपने इन बातों को समझ लेना कि ये ऑर्डर में नहीं है, और अगर ऑर्डर में नहीं है तो आप 100% उस पर ना लगाए। ऑर्डर में नहीं है तो आप 1000% 100% उस पर क्यों आप दुखी होते हैं उसके लिए? ठीक है। आप बोलेंगे आप भी उस दिन इबादत करते हैं, तो इबादत करते हैं ना भाई, हम कोई गुनाह तो नहीं करते। उस दिन हम किसी फैशन शो पे तो नहीं गए, हमने रात तक वहां पर कुछ एंजॉयमेंट तो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमने। जितना बड़ा सितारा, उसी सितारे के नीचे उतनी बड़ी बोतल, ऐसा तो नहीं किया हमने। दुआई किया ना, कौन सा गुनाह कर लिया? और वैसे भी मेरे नजदीक सारे दिन खुदावंद के, सारे दिन खुदावंद, सारे दिन खुदावंद। अब जिस दिन बैठ जाए पड़ाव लगाकर खुदावंद के लिए, और खुदावंद को टाइम दें और उसके कलाम में शराकत करें और फेलोशिप करें, वो दिन खुदावंद का हो जाता है। हम उस दिन खुदावंद का और उसकी पैदाइश का तज़किरा करते हैं, यस करते हैं, आमीन, लेकिन हम उसमें कुछ सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि खुदावंद यूसुफ पैदा ही नहीं हुआ, पैदा हुआ है, आमीन, किसी एक दिन पैदा हुआ है, दैट्स इट।
ना भी हमें पता हो कि इस डेट पे पैदा हुआ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नबी बयान करता है कि यीशु मसीह एक बर्रा था, एक बर्रे का टाइटल लेकर आया। और अगर बर्रे का टाइटल लेकर आया है तो बर्रे का कुछ ना कुछ पैदाइश का जो अदादो शुमार होता है टाइम का, वो भी खुदा उसको भी मेजरमेंट में रखता है। और बर्रे आमतौर पर सर्दियों में पैदा नहीं होते, और बर्रे ना ही सर्दियों के मौसम में बाहर बियाबानों में चराए जाते हैं रात के टाइम। बर्रा एक ऐसा, या बकरा, बकरियां या भेड़ें एक ऐसा जानवर है, बड़ा नाजुक होता है। इनको रातों के बीच में, गर्मियों में तो चरा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में। फिर वो ये भी कहते हैं कि जिस जगह का ये वाकया, जब यीशु पैदा हुए थे तो जमीन फलस्तीन थी, वो पहाड़ी इलाका था जहां पर यीशु पैदा हुए। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है। दिसंबर और जनवरी के महीनों में कह लें कि वहां पर तो एक पहाड़ी इलाका है, स्मूथ ग्राउंड इलाका नहीं था, पहाड़ी इलाका था, तो वहां पर तो 20-20 फुट बर्फ होगी। तो उस इलाके में कहां पर वो बैठ कर चला रहे थे? जबकि बाइबल में हमें ये हवाले जात नजर आते हैं कि वो वहां पर बैठ करके अपनी भेड़ों की निगरानी कर रहे थे, और आग इसलिए जलाई थी क्योंकि रोशनी हो। जबकि यीशु जब पकड़े गए थे और पकड़वाए गए, और वहां पर बरामदे में कुछ लोग आग सेक रहे थे, ताप रहे थे। वहां पर रोशनी के लिए नहीं थी, क्योंकि वो महल था, वहां पर रोशनी के लिए चिराग लगे होते हैं। वहां पर आग जलाकर रोशनी वहां पर ताप रहे थे, और वो कब था? सर्दियों में। और कुछ ही दिनों बाद यीशु ने जी उठना था। इसका मतलब है आपके जो यीशु की उठाए जाने का, यानी कह लें कि रेजरेक्शन का दिन है, क्यामत का दिन है, उसके उठाए जाने का दिन है। क्यामत का मतलब उठाया जाना, क्याम, खड़ा हो जाना। जिंदा होने का दिन जो है, जिसे लोग ईस्टर कहते हैं, वो क्या था? बताया जाता है कि वो सर्दियों में, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि सिनेरियो ऐसा चल रहा है अदादो शुमार के मुताबिक, अगर आप देखें। आमीन। लेकिन दुनिया ने क्या कर दिया? दुनिया ने किया क्या कि यीशु की पैदाइश को ले आए वो सर्दियों में, और यीशु के जी उठने को ले आए वो गर्मियों में। जबकि बाइबल में हमें नजर आता है कि यीशु जी उठे सर्दियों में, और यीशु की पैदाइश हुई नॉर्मल मौसम में, अप्रैल में, जहां पर मौसम बहार होता है, जहां पर बर्रों की पैदाइश होती है, जिस मौसम में। आमीन। तो आज सारी दुनिया फिर लगी हुई है, और उसमें से हमारे बिलीवर्स भी लगे हुए हैं। लेकिन बिलीवर्स को मैं एक बात कहूंगा कि मैं जानता हूं कि सिगरेट इतनी जल्दी नहीं छूटता। मुझे पता है ये नस्लों से चलता आ रहा है क्रिसमस, और दुनिया मनाती है, और बिलीवर्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन आप अगर इस दुनिया के अंदर हैं, और अपने इर्द गिर्द के लोगों में हैं, बच्चों में हैं जो इन चीजों को नहीं छोड़ पाते, आप एक बात जहन में रखिएगा, आप कोई ऐसी एक्टिविटी मत कीजिएगा। मिसाल के तौर पर क्रिसमस पे आप पार्टियों में मत जाइएगा, है ना? आप कोई ऑल फोल किस्म की बात या कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा, कोई गलत तालीम के कांग्रेगेशन में मत जाइएगा। आमीन। उस लेवल पे जाके मत कीजिएगा जिस लेवल पे लोग समझते हैं। हाँ, आप कलाम से मोहब्बत कीजिए, सीखिए, इसमें से जानिए, और कलाम को सीखिए और समझिए, तो आपको पता चले कि क्यों, क्योंकि आप रूह में। मेरी बात समझ रहे? समझाता तो लूत भी अपनी बच्चियों को होगा, समझाता होगा ना? समझाता था कि नहीं? समझाता तो वो अपनी बीवी को भी होगा। पर मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है दुनिया में, टफ टाइम लीडर्स के लिए भी, औलादें, नबियों की औलादें, पास्टर्स की औलादें। लोग कहते पादरियों औलाद, तो क्या बड़े हैरान होते हैं भाई, पास्टर को एक ड्यूटी दी गई है, क्या वो दुनिया को सिखाता तो बच्चों को ना सिखाता होगा? सिखाता है, और इसी तरह बल्कि इससे भी ज्यादा शायद शदीद तरीके से सिखाता हो। लेकिन वो उसको घोट कर, गिलास में डालकर, है ना, चम्मच हिलाकर पिला नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आमीन। और फिर कहता हूं, खुदा के हुजूर में इनफरादी तौर पर इनिशियली आपकी अदालत होगी, आपकी मां की जगह पर आपकी नहीं होगी। खुदा जो जान गुनाह करेगी वो, और इसी तरह जो जान फिर रूह में आएगी फिर खुदा की बेटी या बेटा बनेगी। जरूरी नहीं कि मां भी बचे, बाप भी बचे हैं। लाजर से कहता है, उससे इब्राहिम से कहता है, इसको भेज मेरी तरफ, और इसको ऐसा कर, चल ये नहीं तो फिर ऐसा कर, इसको नीचे भेज जमीन। मेरे दूसरे भाई भी, उसने कहा उन्होंने देख लांगे, वो तो है नहीं, तू उनका फिक्र मत कर, उधर हैं लगे हुए, अगर उनकी मान गए तो ठीक, नहीं तो तेरी तरह वो भी आएंगे इधर ही। समझ आंटी गल दी? खुदावंद का दिन, मेरे अजीजों लोग लगे हुए हैं खुदावंद के दिन की
परेशानी में लगे हैं। क्या सबत खुदावन का दिन है? हाँ, खुदावन का दिन है, लेकिन हमारा सबत कौन है? पाक कलाम में लिखा है हमारा सबत यानी यीशु मसीह है। आमीन। हम पुराने ऐतरामे का सबक गॉड ब्लेस यू। आखिरी चंद बातें सीखने। सबत क्योंकि खुदावन का दिन है, आमीन, और एक खुदावन का दिन वो है जो रूह में आ गया। आमीन, एक खुदावन का दिन है जो अदालत का दिन आएगा। आमीन, आमीन, मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन, तो दिन है खुदावन के, अदालत का दिन, रूह में आने का दिन, और फिर सबत का दिन यानी आराम का दिन। पाक कलाम में लिखा है, मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, आखिरी बातें सुन ले, आखिरी बातें करके आमीन। आमीन, मुकद्दस पौलुस इब्रानियों के खत के अंदर बताते हैं कि अगर यशवा, पुराने अहदनामे का यशवा, हकीकी तौर पर उसने उन्हें सबत में दाखिल किया होता, यानी आराम में दाखिल हकीकी तौर पर किया होता, तमसीली तौर पर किया था, आमीन, वादे के मुल्क में लेकर गया था। वादे का मुल्क हमारे लिए क्या है? अमन का मुल्क है, सबत का मुल्क है, आराम का मुल्क है, वादे की जगह। आमीन, वो गया लेकिन आराम में रहे नहीं, वजह क्योंकि जमीन थी ना, और जमीन पर इब्लीस का कब्जा है। जब तक यीशु ले नहीं जाता वो रहना था। आमीन। इसलिए वो कहता है यशवा उसे पूरे तौर पर सबत में शामिल, उन्हें खुदा उनके लोगों को, बनी इस्राइल को शामिल नहीं कर सका। आमीन, और अगर उसने कर दिया होता तो क्या ही बात थी, लेकिन कहता है खुदावंद के मुकद्दसों के लिए अभी सबत का आराम बाकी। आमीन, अब खुदावंद के मुकद्दस कौन है? पहले खुदावंद के मुकद्दसीन कौन थे? जिनको पहली बार यीशु जमीन में, पाताल में से, फिरदौस जो जगह थी वहां से निकाल कर इब्लीस की कैद से आसमान पर ले गया। उनके लिए सबत कहां पर हो गया? आसमान पर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी भी पाक कलाम में लिखा है कि तख्त के नीचे कुछ रूहें हैं जो चिल्लाती हैं, क्या खुदावंद तू हमारा इंसाफ कब करेगा? आमीन, पता है ना, आमीन, छठे बाब में तख्त के नीचे चिल्ला उठती हैं, वो कहती हैं खुदावंद तू हमारी अदालत कब करेगा? और खुदावंद उनसे कहता है अभी थोड़ा और इंतजार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे तुम्हारे और भी भाई हैं आमीन, जो अभी कत्ल होकर आएंगे। आमीन, ये दुल्हन नहीं है, ये पुराने अहदनामे के और नए अहदनामे के कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने मिली जुली भीड़ में होंगे, हाथों में डाली होंगी रोशन करेंगे। वो ऐसा लिखा है। आमीन, लेकिन सामने तख्त पर कुछ होगा, 24 बुजुर्ग होंगे, उनके अलग होंगे मामला। आमीन। आमीन, और फिर दूल्हा और दुल्हन होंगे, उनके वो इकट्ठे होंगे। आमीन, हालेलुया। ब्राइड चर्च होगा सामने। अब मेरी बात को गौर से सुनिए, हमारा आराम, सबत का आराम उनके लिए, मुकद्दसों के लिए, वो मुकद्दस और नए अहदनामे के मुकद्दसीन, इनके लिए अभी बाकी है। आमीन, वो अभी आलमे रवा के छठे मकाम पर बैठे तो हैं, फिरदौस जो है छठे मकाम पे चलेगी, लेकिन सातवें पर नहीं अभी पहुंचे। आमीन, वो क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि अभी बनी इस्राइल को भी आजाद होना है और दुल्हन का भी रैप्चर होना है। आमीन, समझो कि नहीं समझे? आमीन, तो दुल्हन भी अभी सबत में, सबत का बयाना तो मिल गया उन्हें। आमीन, भाई इब्राहिम कहते हैं हमारे लिए बयाना क्या है? रूह का मिलना हमारे लिए बयाना है कि हाँ भाईजान तुसी दुल्हन, तुसी सबत च जाओगे पक्का, आमीन। लेकिन जो रैप्चर हो जाएगा वो बयाने दी पूरी रकम अदा कर दी जाएगी। हालेलुया, समझ रहे मेरी गल? आमीन, तो अभी तैयारी चल रही है ना, जगह की तैयारी, कलीसिया की तैयारी, तामीर। गलन समझ रहे हो? यानी कलाम के मुकाशफात से आपको तैयार किया जा रहा है कि कोई गल पीछे रह ना जाए। जड़ी रैप्चर तो पीछे छोड़ दे, बच्चे नु पास होने तो या फर्स्ट पोजीशन लैन तो पीछे ना रखे। आमीन। आमीन, तो बातों में साथ रहिए। तो सबत क्या है? सातवीं जगह जहां पर खुदावंद बादशाहों का बादशाह बैठा हुआ है। जब तक आप उस तख्त तक पहुंच नहीं जाते, उस कद के अंदाजा तक पूरे पहुंच नहीं जाते, उस कैपस्टोन यानी कॉर्नर स्टोन यानी कि कोने के सिरे के पत्थर के पास पहुंच नहीं जाते, आमीन, तब तक आपका सबत अभी बाकी है। आमीन, लेकिन आपके पास, आप लोगों के पास एक बयाना मौजूद है। जो रूह में आ जाते हैं उनके पास बयाना आ जाता है कि हाँ भाई रूह में जो है, रूह की मोहर है, वादे की मोहर है, ये पक्का जाएंगे उस तख्त के ऊपर, बट जाएंगे, अभी जाना है। आमीन, हालात बन गए हैं ऐसे, हालात बता रहे हैं कि अब यीशु मसीह की आमद बिल्कुल सर पे खड़ी है। हालात बता रहे हैं अगर सर पे खड़ी है तो ऐसी फिर सुते नहीं रहना, कुछ करना है ऐसा। हालेलुया। तो छठे मकाम पर भी अभी सबत नहीं, वहां पर भी तख्त के नीचे कुछ रूहें हैं, वो कह रही हैं कदो इंसाफ। भाई इब्राहिम कहते हैं ये यहूदियों की रूहें। इंसाफ हमेशा यहूदी मांगता है, आमीन, जो ब्राइड है वो इंसाफ नहीं मांगती। वो इंसाफ क्यों नहीं मांगती? क्यों नहीं मांगती? मैंने दसो, रोटी कोई नहीं घर दे बच्चे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ, क्यों ਲੈਣ ਭੇਜ ਦਿਓ? क्यों भेज दियो? हैं? खाने के लिए तो भेजते हो, होटल पे क्यों, उसमें तंदूर पे क्यों भेजा है?
घर में आटा कोई नहीं, तो मतलब है नहीं। जब नहीं होता ना, कुछ गुंदा नहीं होता या होता नहीं, तो फिर ही बेचते हो ना आमतौर से। कुछ ना होवे, कुछ ना होए चीज तो फिर ही मंगवानी पैंदी है। तो दुल्हन इंसाफ क्यों नहीं मांगती? आमीन। उसका इंसाफ हो चुका है, उसका तो हो चुका है, वो प्रीडेस्टिनेट है, उस पर कोई मसला नहीं है। वो इंसान ने मैं हटा इंसाफ कर, इंसाफ को वो ताड़ा हो चुका है। ताड़ी जड़ी गुनाहों की किताब सी ना, उन्होंने तो वैसे क्लोज कर देता है, उसका मैंने दे दिया खमियाजा। अब तुमने उस पर ईमान लाए और आ गए। ये जो सामने वाले हैं ये देर से आए, टाइम के बाद आए, इन्होंने पूरे नंबर नहीं लिए, आप लोगों ने लिए हैं, इसलिए आप तख्त के ऊपर हैं। आप इंसाफ मांगने वाले नहीं बल्कि इंसाफ बांटने वाले। इंसाफ करें इन लोगों का। भाईजान कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे है तो साढ़े नाल ही ये क्यों इंसाफ कर देने, इन्होंने भी किताब खोल। बोलेगा खोली थी, लेकिन मैंने जब जान दी थी तो इनकी किताब के सारे गुनाह मेरे लहू से मैंने मिटा दिए, और उस किताब को मैंने हमेशा के लिए बंद करके डाल दिया किसी जगह पे। हालेलुया। इनकी बात ना करो, ये अब तुम्हारा इंसाफ करेंगे। कैसी अजीब बात। अजीब इसलिए क्योंकि यीशु मसीह अजीब है, और उसकी दुल्हन की बातें और उसके दुल्हन का कैरेक्टर भी अजीब कैरेक्टर है। लोगों में सेट नहीं होता वो। लोग कहते हैं ये अजीब जे लोग ने, किंज दे लोग, भाई जिंदे भी लोग ने अंज दे लोग, ऐसे ही ब्राइड के लोग। हालेलुया। तो सबत का आराम अभी बाकी है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। मुकद्दम अगर यीशु ने दाखिल किया होता तो ये कहना ना पड़ता कि अभी सबत का आराम बाकी है, और जब बाकी है तो मतलब रैप्चर बाकी है। उनका रैप्चर हो चुका, लेकिन हमारे बगैर वो सबत में दाखिल नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। पहला पहुंच गए भाई जी, बैजो खरीद वो आने ते काम ते खाना खुले नहीं, तो कहते पहला पहुंच गया, पहला दियो, बोले पहले नहीं, उनके बगैर नहीं चलना। तो इसका मतलब है जिसके बगैर कुछ नहीं चलता वो बड़ा अहम होता है। तो यीशु की अजीज है कौम या दुल्हन? दुल्हन अजीज है भाई। तो दुल्हन थल्ले वे हाले जमीन दा नमक थल्ले वे तानू पहले ही नहीं, रुको, वेट करो। और लाखों लाख रूहें जो अब तक आसमानों में जा चुकी हैं, पहले वो जमीन के, यीशु की जान देने से पहले वो जमीन के नीचे जाती थी कब्जा में, फिर छुड़ाया और आसमान पर ले गया। तब से अब तक दुल्हन के लिए यीशु रुका हुआ है, और जब दुल्हन आएगी वो तख्त पर जाएगी और ये सामने आ जाएंगे। क्या ख्याल है? मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है बच्चों के लिए सबत का आराम बाकी, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। हमारा आराम कैसे शुरू होगा? रैप्चर। आमीन। और हमारे आराम के साथ उनका आराम लगा हुआ है। अगर हम आराम में नहीं जाएंगे तो वो आराम में नहीं रहेंगे। आमीन। इसलिए है मत समझो कि ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਬਸ ਆਏ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਾਈ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇੰਜ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੱਕ ਆਮੀਨ। 35 ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਲਓ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੌਦ ਆਏ ਸਹੀ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣਾ। ਆਮੀਨ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇ ਸਕੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, अबू मेरे ऐस कोई तो स्टोरी छड़ जो बंदे दे पुत्रां वाली। आमीन। सॉरी मेरे सख्त लफ्जों, आमीन, माफ कीजिएगा। आमीन। कोई ते पीछे छड़ जो किरदार, वरना ते तानू भी पता है कब्रिस्तान च लोग शुरू चंगा ठीक है, बाकी बड़ा कौड़ा, बड़ा पैड़ा, बड़ा बैड़ा। आमीन। ये गल बिल्कुल है जी, ऐसे है कि नहीं? आमीन। मैं कुछ गलत बोलूंगा तो कह देना भाई ना इत्थों गलत हो। आमीन। 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 बेटा सच बताना बहुत जरूरी है, वहीं पे फैसले होने शुरू हो जाते हैं। जो आप ही टकेदा नहीं ना होता वो भी कहता है परां कर ते बंदा ही बड़ा भैड़ा सी है, हालांकि आप ही खुशबे हैं बड़ा चंगा होवे बाबा किस्म का। इसलिए कुछ छोड़ जो बच्चों के लिए कि ताड़े बारे कोई लफ्ज ते चंगे बोल दें, वरना देर आए जदों भी आए जाना ते है वे तुसां। लेकिन एक गल ध्यान रखो, गुनाह च मरे ते बचत कोई नहीं है। असी पिछों पकौड़े समोसे हैं, केले माल्टे इकट्ठा ही मतंजन बना के बेचते जाइए, बेचते कहते बांटते जाइए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई बचत नहीं होनी। मत फजूल याद करया करो, मत करो, बल्कि ਉਹਦਾ की करो, उस पैसे ਨੂੰ पकड़ो ते खुदावंद वास्ते इस्तेमाल करो। अपने घर च फैलोशिप करो खुदावंद दे साथ। आमीन। और ये बातें जो खुदा के ऑर्डर से बाहर, वो हमारे लिए पाप हैं, गुनाह है, वो नहीं करना हमने। खुदावंद का दिन, मेरे अजीजों, खुदावंद का दिन शुरू हो चुका हुआ है। कब हुआ? 120 से शुरू हुआ है और अब रैप्चर पे जाके खत्म होगा। ये उसका पहला दिन कब शुरू हुआ?
कब शुरू हुआ था? जब यीशु ने रूह को हासिल किया और फिर पहली टोकरी को लेकर गया ईमानदारों के पहले फल। आमीन। आमीन। और फिर दूसरा दिन कहाँ शुरू हुआ? 120 की जमात पर उतरा और फिर चलता जा रहा है और अभी ये लेके जाना है दूसरी टोकरी। और उसके बाद तीसरा दिन कब शुरू होगा? कब होगा? तीसरी आमद इब्न दाऊद की, तब रहम नहीं होगा, अदालत होगी, कौमें आएंगी, झुकेंगी। लिखा है जमीन और आसमान का, जमीन का हर एक कबीला छाती पीटेगा और उसके आगे झुकेगा और कहेगा हाय ऐ खुदावंद हमें बर्रा के गजब से बचा ले। कोई हमें बर्रा के गजब से बचा ले। कौन बचाए भाईजान? तुसी जो जज नाल ही तुसी रौला पा लिया है ते कौन सिफारिश करेगा ਤੁਹਾਡੀ? वो तो सोचना ही थलड़ी पार्टी ना शुरू हो जाते उत्ते ही जाके तुझे जनाब पक्का ही काम पीछे वापसी का कोई रास्ते नहीं चढ़िया। क्या ख्याल है? क्यों जी? आपका टाइम ज्यादा ले लिए लेकिन बातें ये सारी हमारे करने के लिए थी मेरे अजीजों। हमें जानना है, समझना है, अकल को बेदार करना है। मैं कहता हूँ बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है, बालों के सफेद वाला या हाइट में बड़ा, तालीम में बड़ा, वो नहीं होता। बड़ा वो होता है जो दिल से बड़ा, जो सोच से बड़ा, वो बड़ा होता है। और यस्सु दिल से भी बड़ा था और सोच से भी बड़ा था। अगर यस्सु दिल से बड़ा था, सोच से बड़ा था, तो दुल्हन एवं चैम्याली ले जाएगा? नहीं लेगा, लेगा ही नहीं। कर लो जो मर्जी, भावें एक बंदा उन्होंने जमीन तो रैप्चर कराना पिया ना, वो एक लै जाएगा, पर दुनिया नु कहेगा तुसी इत्थे ही रहो, क्योंकि गैरतमंद खुदा है। आमीन। ऐसी दुल्हन जिसके न दाग न दब्बा न जुड़ी हो। मेरे अजीजों, खुदावन का दिन बड़ा अहम है। आपके लिए खुदावन का दिन वो है जिस दिन आपको रूह मिलेगा, जिस दिन आप खुदावन की बातों को फॉलो करोगे, अपने दिल में रखोगे, कंसीव करोगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारोगे और रूह में रहोगे। हालेलुया। तो वो आपके लिए खुदावन का दिन है और खुदा आपको जरूर अपने पास सबत में यानी आराम में दाखिल करेगा, यानी रैप्चर करवाएगा। हालेलुया। खुदावन इस कलाम के बायस हमारा ईमान बढ़ाए, हमें मजबूती दे और हमारी अकल, दानिश और हिकमत को बढ़ाए और खुदावन के काबिल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको आए मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे।